Hello everyone. Welcome to the Teacher Tube Science online study channel. Today we will discuss a new chapter of NCERT Science class 10th, chapter number 12, Electricity, part number 3. In this lesson we will discuss about the Ohm's law and the heating effects of electricity, current and its applications also. In the previous video we have discussed about the constitute of electricity, how electricity flow in a circuit, what are the factors that control or regulate the current through an electric circuit. That all we have discussed. If you have not watched the previous videos, please go to TeacherTube online study channel and watch these videos. Then only you will understand the next part. Okay, so we shall continue now. So in this chapter we are going to start the part that is combination of resistors or the combination of resistance. The combination of resistors in a series or in a parallel combination, the heating effect of electric current and electric power. The first one we will discuss the combination of resistors. First is series combination and then the parallel combination. So in a series combination you just see all the resistors are in a series, one after one. So here R1, then R2, then R3, all these are in a parallel series. Series. Then यहाँ क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर रेसिस्टर के लिए डिफरेंस होगा. ठीक है, हर रेसिस्टर के लिए R जो है डिफरेंस होगा, V1 के लिए R1, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3. बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ओनली I जो है I यहाँ पर डिफरेंट होगी, I1 देन I2 देन I3. समझने की बात ध्यान रखिए. सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज इन दिस combination, series combination, the I is same, no change in I's value, but here I is changing, I1, I2, I3. Again V is changing here, V1, V2, V3, but here V is not changing, means potential difference is not changing. So these are some basic differences. So when we calculate this, the total resistance in a series combination and in a parallel combination, we have to keep in mind about these two facts. So first let's discuss about the resistors in a series arrangement. So when we talk about a series arrangement, it is the resistors are joined from end to end. Okay, so when resistors are joined from end to end in a circuit, जब सर्किट जो रेसिस्टर है वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे वन रेसिस्टर देन सेकंड रेसिस्टर देन थर्ड रेसिस्टर एंड देन सो ऑन. सो ऐसा जो अरेंजमेंट होगा उसको हम कहेंगे सीरीज अरेंजमेंट कहेंगे. ठीक है, इन दिस केस द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिस्टेंस. जितने भी रेसिस्टेंस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो टोटल जो रेसिस्टेंस होगा, जो टोटल R मीन्स टोटल रेसिस्टेंस जो होगा, वो जितने भी रेसिस्टेंस हम यूज करें 1 यूज 2 3 4 और वाट एवर, जितने भी रेसिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं उन सब के टोटल के इक्वल होगा ये एक रेसिस्टेंस. अगर हम ये चाहें कि इन सभी रेसिस्टर्स को रिमूव करके ओनली सिंगल रेसिस्टर यूज़ करना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन सभी रेसिस्टर्स के जो वैल्यू है उसके टोटल के इक्वल होगी एक सिंगल रेसिस्टर की वैल्यू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं. यहाँ देखिए ये एक सीरीज अरेंजमेंट है. So let three resistors R1, we are taking here three resistors, these are R1, sorry,
R1, then R2, then R3. So we are taking 3 resistors. One is here, second, third. 3 resistors are taken, and all these resistors are connected in a series connection. Now the potential difference from A to B, from here to here, the potential difference that is called V will be equal to V. Potential difference will be V in between A and B. Then potential difference between R1, between the ends of R1, R2 and R3 will be equal to V1, then consecutively V2, then V3. So यहाँ जो R1 के पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1, R2 के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V2, और R3 के पास जो होगा वो होगा V3. ठीक है, चलिए अभी देखते हैं. देखो पानी थोड़ा सा और दे यार. द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू I. So current that is flowing through the combination is I. So as we know, as per the हमने अभी जो देखा, so V will be equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, then according to the Ohm's law क्या होगा? So हम जानते ही हैं V is equal to IR होता है. अब यहाँ पर I भी डिफरेंट है, I भी R और I सेम है, सॉरी V डिफरेंट है और R भी क्या है, डिफरेंट है. तो इनको हम डिफरेंट ही ले लेंगे. तो चलिए देखते हैं. जैसे V1 के लिए होगा I R1, V2 के लिए होगा I R2 और V3 के लिए क्या होगा, I R3. दैट इज क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टोटल द रेसिस्टेंस. तो टोटल जो रेसिस्टेंस है वो कितना होगा, R होगा. तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा R3. तो ये R आ गया, टोटल रेसिस्टेंस आ गया हमारा. नाउ ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी रखी, और जो दूसरी हमारी इक्वेशन रखी वो ये तीनों को एक साथ लिख कर सकते हैं, या इनको सबको मिलाकर भी अलग अलग भी लिख सकते हैं. तो ये दूसरी इक्वेशन यहाँ से लेकर आएंगे हम. इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो इनकी वैल्यू रखते हैं. तो वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, हम रखते हैं जैसे V इज़ इक्वल टू आई आर. तो यहाँ V1 V सब आ जाएंगे. तो I के, क्योंकि I जो है वो सबके लिए सेम है, यहाँ I में कोई चेंजिंग नहीं है. सो I इज़ इक्वल टू, नो सॉरी V हम ले रहे हैं, V की बात कर रहे हैं. सो एक मिनट, सॉरी, लेट्स राइट द इक्वेशंस अगेन. सो वी नो दैट V is equal to V1, oh sorry, plus V2 plus V3. Okay, this is for V. So then this equation we can mark as 1. The second one we can write that V1 is equal to IR1, then V2 is equal to IR2. सॉरी ये थोड़ा यार ये तो सही नहीं कर रहे थे. कौन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज V, we will write the V is equal to V1 plus V2 plus V3. शेप सही नहीं बन रहा प्लीज, सॉरी. ओके, देन एज पर द Ohm's law we know that V1 will be equal to I into R1, और V2 will be equal to I into R2, और V3 will be equal to I into R3. तो ये तीनों एक ही इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं इनको. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी. अब इक्वेशन 1 और 2 से हम जो वैल्यू हैं वो यहाँ रखते हैं. हमें पता है से V इज़ इक्वल टू I इंटू R, यही होता है. तो यहाँ इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू रखते हैं. तो लेट अस सी. अगर हम वैल्यू रखें तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएंगी वो इस तरह से आएंगी. I इज इक्वल टू,
ये सॉरी I1 I टोटली रख लेते हैं यहाँ पर, I और R टोटल, और इधर रहेगा हमारा IR1 प्लस IR2 प्लस होगा हमारा IR3। ठीक है, तो यहाँ I इज़ कॉमन, तो I को तो हम निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा रेसिस्टेंस, जो टोटल रेसिस्टेंस, इसको RT भी लिख सकते हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये तो सो द टोटल रेसिस्टेंस जो है वो कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्वेशन आपकी बन जाती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस पर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीरीज का, ये हमने कर लिया है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया हाथ से। नाउ रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रेसिस्टर कैसे होंगे, किस तरह से ऐड होंगे, वो देखिए यहाँ दिख रहे हैं, हम आप सबको दिख रहे होंगे कि यहाँ R1 R2 और R3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा सो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब जो डिफरेंस चीज़ें आएंगी वो एक तो होगी I और दूसरा होगा R। यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन होंगी, क्योंकि जो डिफरेंस I1 देन I2 देन I3 इन द सेम वे R1 R2 और R3। अब यहाँ पर V जो है वो कॉमन रहेगा, V जो है अनचेंज्ड रहेगा, चेंज नहीं रहता है। तो इसको देखते हैं। सो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 रहेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो I1 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, गॉट इट। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और R3 इसी तरह से I3 जो होगा वो कैसे होगा, V अपॉन R3। सो ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हम इसको रख लेंगे और जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो इसको मान लेंगे। इन तीनों को एक साथ रख के एक इक्वेशन हम मान लेते हैं। अब सभी का जो वैल्यू है वो एक जगह रखते हैं हम। हमें सबको पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो वहीं से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे, फिर इन सब की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। ठीक है ना। सो वैल्यू रखने पर देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I की वैल्यू हमारी आ गई V अपॉन R, I1 की आएगी V अपॉन R1, I2 की आएगी हमारी V अपॉन R2 एंड I3 की होगी V अपॉन R3। गॉट इट। नाउ V इज कॉमन, सो V विल बी कैंसिल्ड एंड इट विल बी रिटन एज I अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो ये जो हमारा आता है ये किसके लिए आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। गॉट इट। द सेम है, सेम तरीके से हम इसको, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो आप इसको मैंने करके बता दिया है। अब आते हैं हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। सो करंट इज सप्लाइड टू ए प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डेसिपेटेड मीन्स वेस्ट होती है। जब किसी सर्किट में एनर्जी सप्लाई होगी तो कुछ उसकी एनर्जी जो है वेस्ट होती है, एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एज ए रिजल्ट रेसिस्टर गेट्स हीटेड। और इसकी वजह से जो रेसिस्टर्स हैं उनका जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है। देन द हीटिंग ऑफ रेसिस्टर बिकॉज ऑफ डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉमनली नोन एज हीटिंग इफेक्ट।
सो जो हमारे रेसिस्टर्स हैं उनका डेसिपेशन की वजह से, इलेक्ट्रिक एनर्जी के डेसिपेशन की वजह से जो लॉस है एनर्जी का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। सम एग्जांपल्स आर लाइक दिस, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है। इन ए इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे होगा, देखो, द फिलामेंट गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स लाइट। इसमें जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है, वो हीट गेन करता है, उसमें हीट गेन होती है और उसी की वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करता है। द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन्स बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट? कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके कारण क्या है, क्या रीजन है? द करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस। ये जो हीट है ये क्यों हो रही है? क्योंकि जो करंट जो है वो रेसिस्टर से पास हो रहा है। रेसिस्टर जो है करंट को फ्लो होने के लिए क्या करता है, उसका विरोध करता है, उसको रेसिस्ट करता है। अब इस विरोध को, इस रेसिस्ट को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसको काम करना पड़ रहा है। इसी की वजह से वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हायर द रेसिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। Thus, generation of heat by electric current while passing through a conductor is an inevitable, ये हटाया नहीं जा सकता, consequence मीन्स ये ज़रूरी है, इसको कुछ सुधार नहीं हो सकता, ये होना ही है। This heating effect is used in many appliances such as electric iron. इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक गीज़र में भी इस तरह से हीटिंग इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम आते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लॉ जो हीटिंग का जो जूल्स लॉ है वहाँ पर हम बात करते हैं। लेट एन इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो थ्रू ए रेसिस्टर हैविंग रेसिस्टेंस ऑफ R। तो यहाँ मिल गया हमें I मिल गया, एक हो गया R। देन द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रेसिस्टर इज V। द चार्ज, अब यहाँ बात करते हैं हम चार्ज की। द चार्ज Q फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर द टाइम T। T टाइम के लिए ये फ्लो हो रहा है, गॉट इट, T टाइम के लिए। सो द वर्क डन इन मूविंग ऑफ चार्ज, जो चार्जिंग को चार्ज जो हैं उन चार्ज को फ्लो करने के लिए, उनके मूवमेंट के लिए जो वर्क किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस V। जो वर्क हमने यहाँ पे किया गया वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है। सो यहाँ देखो V जो होगा वो W, जो काम जो किया जाएगा वो काम होगा इस तरह से, W इज इक्वल टू V इंटू Q। यहाँ पे W, हम एक और चीज़ पढ़ के आए पहले, फोर्स का भी हमने पढ़ा है, M इंटू A जैसे पढ़ा था, उसी तरह से हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। फोर्स जो यहाँ पे काम कर रहा है वो वर्क के रूप में काम कर रहा है। M जो मास है वो यहाँ पे Q है, और जो एक्सीलरेशन मान लीजिए वो है V की तरह। सो उसी फॉर्मूले की तरह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंस दिस चार्ज Q फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर द टाइम T, ये टाइम T के लिए फ्लो हो रहा है ये चार्ज। देयरफॉर पावर इनपुट, जो पावर होगी, इनपुट होगी, जिसको हम पावर बोलेंगे, टू द सर्किट कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगले इक्वेशन से हम P को लिख पाएंगे, जैसे लिखेंगे P विल बी इक्वल टू W अपॉन T। T हियर यहाँ पे स्मॉल आएगा। सो अब यहाँ पर हमने अभी देखा था W इज इक्वल टू V इंटू Q अभी रखा, सो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे P। सो P इज इक्वल टू V इंटू Q इंटू T, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाता है। अब हम जानते हैं कि जो करंट का है फ्लो वो कैसे होता है, वो है Q इंटू I, T टाइम, सॉरी Q इंटू T, यानी I जो है वो किसके इक्वल होगा, T टाइम में कितने जो करंट, कितने जो सॉरी वो बोल देंगे उसको चार्ज, वो कितना मूव करता है। सब्सटीट्यूटिंग Q इंटू T, अब यहाँ पर जो Q इंटू T को I के साथ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, वी गेट P इज इक्वल टू V इंटू I। तो हमें मिलता है P इज इक्वल टू V इंटू I। देखिए यहाँ पर हमने जो सब्सटीट्यूट किया, इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने सब्सटीट्यूट किया किसको, Q इंटू T को, ये Q इंटू T है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया है,
आई रख दिया है। सो हमारा इक्वेशन बनेगा पी यहाँ पर भी है, वी यहाँ पर है, और ये Q इंटू टी की जगह हमने क्या रख लिया, I। तो हमारा इक्वेशन ये बन गया P इज इक्वल टू V इंटू आई। द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड फॉर टाइम t, सो वी गेट P इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, क्योंकि ये टी टाइम के लिए है। सो इक्वेशन नंबर 3 हमें यहाँ इस तरह से मिलता है। सो फॉर स्टीडी करंट, यानी करंट जो है अगर स्टीडी रूप में फ्लो हो रहा है, द हीट प्रोड्यूस्ड will be written as H in time t will be equal to V into I into T। so H को कैसे शो करेंगे हम, H is equal to V into I into T। as we know according to Ohm's law V is equal to I into R। ये हमें पता ही है कि V जो है किसके इक्वल होता है, I और R के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम V को सब्सटीट्यूट कर देंगे और उसकी जगह क्या लेकर आएंगे, I इंटू आर लेकर आएंगे। तो हम जब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो एज इक्वल टू आई आर, जो V की जगह हम लेकर आए आई आर, एंड I इंटू टी, ये पहले से यहाँ पर है, ये देखिए V के साथ में I इंटू टी है। सो आई आर हमने यहाँ V की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास आप इक्वेशन में देख रहे हैं I डबल है, तो डबल हो रही है, इस वजह से इसको I स्क्वायर कर दिया है, और R इंटू टी ये हमारी इक्वेशन में है। सो हमारा जो फॉर्मूला बन गया हीट प्रोड्यूसन का वो हो गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा एनर्जी फील्ड फ्लो होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितने ज़्यादा टाइम तक फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने यहाँ से निकाल। द एक्सप्रेशन फॉर इज नॉन एज जूल्स लॉ, ये जो आया एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी, ये जो इक्वेशन आई है हमारी ये जूल्स लॉ कहलाती है, विच स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ करेंट। किसके इक्वल है ये, प्रोपोर्शनल है ये किसके, स्क्वेयर ऑफ करेंट गिवन टू द रेसिस्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस फॉर द गिवन करेंट, and directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor। तो इन तीनों चीज़ों के ये क्या रहता है, प्रोपोर्शनल होता है। आगे देखते हैं कुछ डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं जो इस आपके चैप्टर में दी गई हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव्स लाइट, क्यों, बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। इसके पीछे रीज़न क्या है, हीटिंग इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिसिटी। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन मेटल। जो फिलामेंट है वो कौन सी मेटल का बनता है, टंगस्टन मेटल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 3380 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए वो खूब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के बाद भी जलता नहीं है और लाइट के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। Then here comes electric iron. The element of electric iron is made of alloy। यहाँ alloy की बात हो रही है। Having high melting point, इनका भी melting point क्या होगा, high। क्यों रखते हैं melting point high, अगर melting point low होगा तो वो पिघल जाएगा, melt हो जाएगा, तो current जो है बंद हो जाएगा, हमारा काम नहीं हो पाएगा। Electric heater and geyser also work on the same mechanism। सो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीज़र ये सब भी एक ही सेम ही मैकेनिज़्म पर काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज फ्रॉम हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ मेड ऑफ मेटल, किससे बना है, मेटल, और एलॉय ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एलॉय से बनता है, such as aluminium, copper, iron, lead, etc. In the case of flow of higher voltage, then specific fuse wire melts and protect the electric appliances। इसमें होगा क्या, जैसे उसकी जो रेटिंग है उतना टेम्परेचर वो सेंड करेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होने से जो, जैसे यहाँ पे हमने रेसिस्टर लगाया या फ्यूज़ लगाया, हमने यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा दिया, यह फ्यूज़ है, तो जैसे ही आई जो है इंक्रीज होती है या उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो ये यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ से मेल्ट होगा क्या, सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, तो हमारे जो और अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गई है, कोई बात नहीं। यहाँ अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से लिखें, सपोज इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 1000 वॉट एट 220 वोल्ट। देखिए जो सप्लाई हमारे घरों में होती है वो 220 वोल्ट पर होती है, और ये इलेक्ट्रिक हीटर जो कंज्यूम कर रहा है 1000 वॉट कंज्यूम कर रहा है। अब समझिए, देन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट विल बी, किस तरह से होगा, I विल बी इक्वल टू P अपॉन V, ये सबको पता है, I विल बी इक्वल टू P अपॉन V। अब यहाँ देखिए P कितना दिया है, पोटेंशियल, उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1000 वोल्ट की, 1000 वाट की, सॉरी वोल्ट नहीं है, वाट, और उसकी जो वोल्ट है वो कितनी है, जो घरों में सप्लाई होती है वो होती है कितनी, 220। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4.5 एम्पियर। इट मीन्स हमें सर्किट के लिए 4.5 एम्पियर या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर को बियर करने की कैपेसिटी वाला फ्यूज़ यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम किसके लिए जाएंगे, कुछ रेटिंग यहाँ पे दी हुई है, फ्यूज़ की रेटिंग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 नहीं है सॉरी 5 एम्पियर, एंड देन जिस भी रेटिंग का आप लेना चाहें, आपकी जो घरेलू जो नीड है उसके अकॉर्डिंग 5 एम्पियर और 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा पावर यूज करेंगे तो ज़्यादा हाई वोल्टेज का, हमें ज़्यादा पावर का क्या लेना पड़ेगा, फ्यूज़ लेना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कैसे करें। इलेक्ट्रिक पावर जो घरों में हमारे यहाँ सप्लाई होती है और मंथली उसका बिल आता है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट, और वाट इज़, जो वाट जो है वो कैसे लिखते हैं इसको, P इज़ इक्वल टू V इंटू आई, हमने देखा था, ध्यान दीजिए इस बात को। ठीक है, अच्छा ठीक है, 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। जो 1 वाट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वोल्ट और एम्पियर के मल्टीप्लाई के। 1 किलोवाट के जो 1000 वाट के इक्वल होगा। ठीक है, सो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली मेजर्ड इन किलोवाट, जो हम जो मेजरमेंट करते हैं वो किलोवाट में ही करते हैं, और घरों में जो यूनिट बनती है हमारी, वो यूनिट होती है वो आवर के हिसाब से ही होती है। सो ये जो किलोवाट आया, इसको अगर हम 1 आवर यानी कि 60 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 वाट बन जाता है, और 1 वाट में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। ये कैलकुलेशन आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट हमने कर लिया। और भी आप अपने घरों में जो अप्लायंसेस हैं उनके ऊपर रेटिंग लिखी रहती है, उन रेटिंग के हिसाब से आप अपना खुद का भी चेक कर सकते हो कि हमारा जो डेली कंजम्पशन है पावर का वो कितना है। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और जो इक्वेशंस हैं इस चैप्टर की, जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।